Okay. Yeah. Okay, fine. What I was saying, yeah, your answer key is already being provided to you, right? You can check your answer with that. That is the correct answer key what we have. For each correct answer, you will be allotted 1 marks to yourself, and for incorrect, 0.25. Like you will be subtracting 0.25. That means if you have done four question incorrect, so you will be subtracting 1 marks from that. Other than this, there is one more rule in that. For example, if you have not attempted 8 question consecutively, for example 1 to 8 or 9 to 16 like that, so point 10 have to be subtracted from that too. GK doesn't have any negative marking, right? Anyways, let's start with the first one. Uh, Venugopal joined a call center during the second wave of COVID because he was sacked from a managerial role in a PR firm. Venugopal took up the role at the call center to support his family, compromising his wife and a 2-year-old son. However, he felt dissatisfied with his new job despite working from home. 1 month after Venugopal joined the firm, Rihanna joined the firm at the same level at Venugopal. Rihanna has been a trainer and writer before joining the call center and was also a brilliant cook. Knowing this, Venugopal started sharing pictures of dishes cooked by him with Rihanna and also asked her to help him write a book. Rihanna agreed to help Venugopal and the two of them started talking often. Rihanna received a call from a unknown number on Friday night around 12 a.m. The caller was Venugopal's wife Gabriela, who told Rihanna who she was. She also told Rihanna that Venugopal drank too much and was therefore asleep. Gabriel asked Rihanna if there was anything urgent she wanted to talk to her husband about. Rihanna was confused and upset about the whole incident and called Venugopal to discuss the matter, but her call was not answered. What should Rihanna do? Okay. See, first of all, Rihanna अपनी मर्जी से was talking to him, right? Like, there was a nothing bad और वेणुगोपाल के character को ऐसा नहीं बताया गया कि, he is pervert or something like that, right? Or she was discomfort with him, right? Obviously, you should have all this thing in mind. Second thing, even his wife called her, right? So there was no concern other than that, right? Okay, anyways, register a complaint against Venugopal and his wife at the local police station. This doesn't make any sense, right? ये तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है. सेकंड ऑप्शन, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा पहले बात तो, राइट. और रेहाना के शी कैन ओनली डू दिस थिंग व्हेन शी फील हरास्ड, राइट, जेन्युइनली हरास्ड फील करे, राइट, और थ्रेटन फील करे, राइट. बट ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं ऊपर वाले केस में कि शी इज बीइंग हरास्ड और शी इज अफ्रेड बिकॉज ऑफ द अबव सिचुएशन, राइट. ठीक है. सेकंड, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू हर मैनेजर. हाँ, शी कैन डू दिस, राइट. Because if Rihanna is feeling uncomfortable or unsafe working directly with Venugopal, right? So first one she should discuss with is your her manager, right? मतलब अगर आप अपने मैनेजर से जाके बात करते हो तो this manager will investigate situation, right? ठीक है, मतलब मे बी ही विल प्रोवाइड यू डिफरेंट वर्क स्पेस, राइट. और डायरेक्टली वेणुगोपाल से बात करके थिंग्स विल बी सेटल्ड आउट, राइट. ठीक है. एक्सेलरेट द मैटर टू द एचआर हेड. अगेन देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यू वांट टू गो थ्रू द एचआर आल्सो, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये भी आप जा सकते हो. मतलब दिस इज ऑल्सो अ राइट थिंग्स टू गो विद, राइट, बट मैनेजर इज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है. फाइंड आउट अबाउट द वेयर अबाउट्स टू वेणुगोपाल फ्रॉम द कंपनी एचआर पोर्टल एंड सेट हिम राइट. यार ये थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल हो जाएगा वेणुगोपाल की प्राइवेसी के लिए. ठीक है. और ये भी नहीं पता ना कि मतलब कि वेयर अबाउट्स हेल्प करेगा कि नहीं करेगा टू गेटिंग द एड्रेस आफ्टर द वाइफ कॉल्स, राइट. तो फोर्थ वाला तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे. ठीक है. तो नाउ वी हैव 2 3. 4 चला गया तो 3 4 भी चला गया, 1 3 भी चला गया, 1 2 भी चला गया, तो ऑप्शन डी 2 and 5, राइट. फिफ्थ क्या है वैसे? Yes, फाइंड yes, आउट, sir. सेंड अ मैसेज टू वेणुगोपाल एक्सप्रेसिंग हर डिस्प्लेजर. हाँ, दिस कैन बी ऑल्सो अ राइट थिंग, राइट. ये डायरेक्ट है, Yes, sir. है ना. तो अगर आप डायरेक्टली उससे बात करो दैट इज ऑल्सो, और उसमें रीजन ये भी है करने का क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखोगे, राइट, 4 C से एलिमिनेट हो जाएगा. फर्स्ट वाला आपका ए और बी एलिमिनेट कर देगा पुलिस वाला, राइट. तो नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 and 5. और एक है क्या? बस 2 and 5 है. एक मिनट. 2 and 4 भी है, राइट. बट 4 पे अगेन व्हाट आर द रीजन आई टोल्ड, राइट, कि आप डायरेक्टली जाके एचआर पोर्टल पे खुद से देखो. दैट इज नॉट करेक्ट, राइट. या तो आप एचआर से बात कर लो. माई पॉइंट इज सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज अ गुड ऑप्शन, राइट. बट थर्ड को उन्होंने रिलेट किया है सिर्फ फोर्थ से और फर्स्ट से, तो दैट विल मेक इट रॉन्ग, राइट. तो डी वुड बी द बेटर आंसर, 2 and 5. ठीक है ना. ओके.
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना है, राइट। तो ऑप्शन में से विल गो विद 2 and 5। ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट। आफ्टर अ ईयर ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, वेणुगोपाल इज आस्क्ड टू वर्क, ये तो पढ़ लिया ना अभी। अच्छा, ओके, रोहित टू, अच्छा, he requests his manager Rohit to allow him to work from home for at least 1 day a week, but the manager does not approve his request. 1 month later, Venugopal had a hairline fracture in a forearm bone where he had an accident while coming to the office. Rohit allowed Venugopal to work from home for 15 days as advised by the doctor. Venugopal requested working from home for 15 more days to recover. Rohit is not sure if he should allow Venugopal to work from home or not. Which of the following piece of information will help Rohit make a decision? Okay, ठीक है। पहला है Venugopal application for 7 day leaves for his brother. Marriage next week was denied by Rohit. भाई मेडिकल परफॉर्मेंस से ये कैसे पता चलेगा, राइट। पूछ क्या रहा है, which of the following piece of information will make a decision? Okay, Venugopal took off the plaster and creep bandage a week before the doctor asked him to. Hmm. Hmm, ये भी हो सकता है। थर्ड, वेणुगोपाल हैज सम इशू विद हिज वाइफ। भाई 3 हटा दो, ठीक है। ठीक है, 3 हटा दो, 3 वाले सारे ऑप्शन। तो हमारे पास क्या क्या, 1 2, द डॉक्टर हैज एडवाइज रेस्ट फॉर अ वीक मोर। 1 2 4, राइट। 3 वाला यू कैनॉट कंसिडर। यस सर। प्रोफेशनल डिसीजन को थर्ड वाला इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, राइट। और फर्स्ट वाला भी नहीं होना चाहिए, बट देर इज नो अदर ऑप्शन इन विच यू जस्ट हैव 2 and 4। हेलो। यस सर, वही वन नहीं सोचा था, बट ऑप्शन नहीं था तो इसलिए। 1 हैज हाँ। टू बी कंसिडर्ड, अब तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन फिर 3 4 से तो इट इज गॉन, राइट। 3 तो आप हटा दोगे, 3 से वी आर डन विद डी, ई एंड बी। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 2 1 2 4, राइट। 4 तो इज कंपल्सरी, 4 and 2 इज कंपल्सरी, राइट। ठीक है। 1, you can't conclude, but they have inserted the option just to confuse you up, right? So you have to go with it। ठीक है, वैसे तो irrelevant option है यार ये तो, मतलब 1 is irrelevant, right? वो भी कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि अभी प्रॉब्लम उसके मेडिकल सिचुएशन से है, राइट, और वर्क परफॉर्मेंस के रिलेटेड, राइट। तो हाउ यू कैन कंक्लूड कि मैरिज से विल बी अफेक्टिंग इट आउट, राइट। इट डजंट मेक एनी सेंस, बट क्या करें, ऑप्शन ने ऐसा सेट किया हुआ है कि यू हैव टू गो विद इट, जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, राइट। और हमें तो ऑप्शंस के थ्रू ही चलना है, भले आपका इंस्टिंक्ट जो भी कह रहा हो, राइट। तो यू हैव टू गो थ्रू 1 2 and 4, दैट इज ऑप्शन सी। क्योंकि ऑप्शन से देखोगे तो यही है, ऐसे तो ये 1 and 3 साफ साफ नेग्लेक्ट हो जाएंगे, राइट, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन इंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। और छोड़ मत देना कि सर गलत तो है ऑप्शन, भाई उसने सेट किया हुआ है तो मार्क्स विल बी गिवन, राइट। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट। एनीवेज नेक्स्ट। वन ऑफ द टीम मेंबर from Venugopal team leaves and Rohit shift Ron from Rihanna team to Venugopal team for a month. Venugopal sets unrealistic targets for Ron, because of which Ron ends up working even on holidays. When Ron showed his displeasure to Venugopal, he started cribbing about his issue with his wife. कौन? अच्छा, okay. Ron, being an elderly gentleman, kept working almost 24 into 7 for 2 weeks. Rihanna noticed this and was taken aback by Venugopal behavior. What should Rihanna do? Okay. What should Rihanna do? Write a formal email to Venugopal to ask for an explanation. Ask Ron to not do anything that Venugopal says. Apprise Rohit for the current situation. पूछ रहा है, Ask Ron to not do anything. नहीं, बट अगर सेकंड वाला ऑप्शन यू विल कंसिडर, राइट, तो वो
रॉन की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर देगा, राइट, प्लस इट विल लीड टू फर्दर कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड वन, राइट। तो वी कैन गो विद 1 and 3। हाँ, राइट, 1 and 3, 1 and 3, यस। तो ऑप्शन ई क्या? तो ई वाला, राइट। नाउ फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट, इफ यू गोना राइट अ फॉर्मल ईमेल टू वेणुगोपाल, राइट, ठीक है, तो यू आर कॉन्टेक्टिंग वेणुगोपाल डायरेक्टली, राइट, so you have to do it professionally. You can't go and tell him like on the face and all, right, because you are in a office, right, even he's making him works a lot of things, right, you should there should be some proof कि भाई आप professionally जाके उससे बात कर रहे हो, तो email will be considered, right, है ना। और दूसरा, प्राइज रोहित ऑफ द करंट सिचुएशन, रिहाना क्या है, कलीग है, राइट, हेलो, है ना, और यस रोहित सर। Yes, sir. मैनेजर, राइट। तो रोहित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉइज, राइट, उनके वेलबींग के लिए, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, राइट, तो उसको ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस थिंग ना, कि देयर इज अनरियलिस्टिक वर्कलोड इज गोइंग अराउंड रॉन, राइट, और जो वेणुगोपाल का बिहेवियर दैट इज इनअप्रोप्रिएट, राइट, उसके पर्सनल व्हाट वी से पर्सनल इश्यूज के कारण his behavior is inappropriate, and what he is doing, he is manipulating the colleagues, राइट। तो अगर आप रोहित को इन्फॉर्म करते हो, डोंट यू थिंक इट विल बी लीड टू अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एंड देयर विल बी मोर पोटेंशियली व्हाट वी कैन करेक्टिव एक्शन, जैसे कि आप एड्रेस करोगे वेणुगोपाल मैनेजमेंट स्टाइल का, लाइक वर्कलोड एडजस्टमेंट, राइट, एंड यू विल प्रोवाइड सपोर्ट टू रॉन, राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड will be a better option. Again, you have to think it according to when you are working in an office, right? The manager is the one whom you can let him know everything, भाई ये चीजें हो रही हैं रॉन के साथ, राइट, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल ना, कि एक जो पर्टिकुलर वर्कलोड एनवायरनमेंट है दैट शुड बी डन ना, राइट। ठीक है, तो ऑप्शन ई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज मीटिंग टुडे ऑन द फ्यूचर, ऊपर वाले तीनों वाज डुएबल, राइट, बहुत इजी थे, टाइम टेकिंग वुड बी around 7 to 8 minutes, 8 to 9 would have option were very direct, like professionally तो आप लोग उसको कर सकते थे, ठीक है। Anyways, थोड़ा सा ओवर थिंक नहीं करते अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन में, राइट, तो ऑब्वियसली वो टाइम हैज बीन सेव्ड, क्योंकि कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, कि तो शादी वाला हो ही नहीं सकता, कैसे दे दिया, मे भी ऑप्शन गलत है, इसमें हमें बोनस मार्क मिल जाएगा, ये वो एंड ऑल, राइट, भाई जो दिया है उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो, राइट, यू डोंट हैव मच टाइम दैट यू शुड बी वेस्टिंग टाइम थिंकिंग अबाउट दिस, कि माइट बी ऑप्शन माइट बी इनकरेक्ट, राइट, उन्होंने वो दो ऑप्शन कंक्लूड कर दिया ना, खत्म बात, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। The board of director of ABC Limited is meeting today on the future of their CEO, Mr. Brilliant. Mr. Brilliant has been accused by the company's IT manager, Miss Leela, of sexual harassment, a charge that Mr. Brilliant vehemently denies. Mr. Brilliant claims that he was in Okay, Mr. Brilliant is an absolute asset to the company, and he has built ABC Limited from scratch to a $1 billion company and substantially oversees interest. Any harsh decision against Mr. Brilliant by the board would adversely affect the future of ABC Limited and could even lead to several key executive loyals to Mr. Brilliant leaving the company. This will benefit ABC competitor, उसने सब बता दिया, right, कि there is something going on with ABC, but this particular person is very important for the company, right, plus second thing, उसका जो point उसने रखा है, whatever it is, right, so he has also kept a point कि it was not just forcefully or something like that, right, it was what we call it house, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, दोनों के whatever, right, वो उसकी वजह से this thing has been done, ठीक है, जो भी तुम लोग समझ गए, right। Anyways, let's move to the question now, which of the following action would adversely affect, now read the question very clearly, which of the following action would adversely affect both Mr. Brilliant and ABC Limited the most, right, ठीक है, most बोल रहा है, ठीक है, पहला, initiate an internal inquiry to find the truth, ask Mr. Brilliant to go on indefinite unpaid leave with immediate effect, take no action against Mr. Brilliant, terminate the service of Mr. Brilliant with immediate effect, ban Mr. Brilliant from entering the company's premises until inquiry has published its finding.
वो कह रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा, राइट? दैट वुड बी डी, टर्मिनेट द सर्विस ऑफ मिस्टर ब्रिलियंट विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट? यस क्योंकि पहले, क्योंकि उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है मिस्टर ब्रिलियंट को, दैट ही इज एन एब्सोल्यूट एसेट, राइट? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग कंपनी टू इट्स करंट सक्सेस, राइट? तो अगर आपको उसका, अगर आप उसका अब्रप्ट टर्मिनेशन करते हो पहला, you will lose, you'll lose the investor confidence, right? और जो पोटेंशियली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी आपकी चली जाएगी, ठीक है? प्लस जो एम्प्लॉयज के मोराले हैं, राइट, और पोटेंशियल डिपार्चर जो होगा, जो की एग्जीक्यूटिव है, दैट इज दिस पर्टिकुलर मिस्टर ब्रिलियंट, राइट? तो कंपनी को फर्दर डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है? थर्ड, जो नेगेटिव पब्लिसिटी और पोटेंशियल होगा ना, जो आपका रेपुटेशन डैमेज होगा, राइट, तो वो ऑब्वियस बात है कस्टमर ट्रस्ट एज वेल एज ब्रांड इमेज को भी हार्नेस कर देगा, ठीक है? और अगर इफ यू आर गोइंग विद टर्मिनेटिंग हिम अप, राइट, मतलब सडन टर्मिनेशन आप इसका करते हो और उसमें भी यू आर पुटिंग सम सीरियस एक्विजिशन ऑन हिम, राइट, तो मिस्टर ब्रिलियंट का रेपुटेशन तो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा ना। मतलब उसका फर्दर जो कैरियर प्रोस्पेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस कंपनी बिकॉज देयर हैज बीन अ चार्ज ऑन यू अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर इट इज, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कंपनी वो चीज करती है तो उसका भी तो इमेज पर्टिकुलरली डैमेज हो जाएगा ना, उसका कैरियर जो प्रोस्पेक्ट है दैट विल बी आल्सो डिक्लाइन ना, राइट? तो डी, है ना? यस यस सर। देखो, अगर आपने बी टिक किया होगा, आस्क मिस्टर ब्रिलियंट टू गो ऑन इंडेफिनिट अनपेड लीव विद इमीडिएट इफेक्ट, राइट? ये क्या है, ये टेम्पररी सस्पेंशन है, राइट, है ना? यस सर। राइट, भाई, और इसमें जो डैमेज होगा दैट विल बी मिनिमाइज, क्योंकि अगर एक्विजिशन फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये मिनिमाइज कर देगा, राइट? मतलब डी ज्यादा है बी और डी में, व्हेन यू विल कंपेयर, राइट, ऑब्वियसली डी विल इफेक्ट मोर ना। यस और अगर आप सी की बात करते हो, टेक नो एक्शन अगेंस्ट ब्रिलियंट, उसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड एडवर्सली अफेक्ट बोथ मिस्टर ब्रिलियंट एंड एबीसी? नो डाउट सी वाला एबीसी को इफेक्ट करेगा, बट ब्रिलियंट को कहाँ करेगा ये तो बताओ, राइट? फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आंसर शुड बी, क्या बोला मैंने, डी ना? उसमें भी डी है ना? यस सर। हाँ यस। सर, ये एक डीएम शीट में एक क्वेश्चन था लॉयल प्रोडिगल वाला, एकदम सिमिलर है ये, बस नाम अलग क्या? है। एक डीएम क्या भाई? शीट में था एक क्वेश्चन, मतलब। हेलो यही ऐसा ही ना? सर, एक DM, हाँ, लॉयल प्रोडिगल वाला पॉलिटिकल पार्टी का एग्जैक्ट सेम ही है, बस नाम ही अलग है इसमें। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, वो वैसे इन्होंने फॉर्म किया होगा, क्या कर सकते हैं, आगे हाँ बढ़ते हैं। क्या है? ओके, भाई मैंने तो पेपर सॉल्व किया, आई फाउंड इट लाइक क्वाइट डुएबल, राइट? मतलब 15-16 तो इजीली करेक्ट हो सकते थे लोगों के, राइट, अगर आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं किया होगा, थोड़ा सा टाइम दिया होगा तो, ठीक है? बाकी हड़बड़ी में अगर आप इसमें खुश हो कि यू आर अटेम्प्टेड 29, यूर गेटिंग 10 करेक्ट और 9 करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग हो रहे हैं, 7-8 नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है, 8 या 9 नंबर यू आर स्कोरिंग सिंगल डिजिट, राइट, इतनी प्रैक्टिस के बाद भी, और इस पेपर में, तो मे बी यू आर लैकिंग समथिंग, राइट? वही कैट वाला फिर आप पकअप करोगे पेपर में, ठीक है? फिर अगेन इवन आई कांट हेल्प, ठीक है? तो दैट मीन्स यू आर नॉट fully concentrated while solving the paper. Okay, I'm just putting my point and sense. Right, this paper, DM is the one that is scoreable. Then more of the things what you are solving till now. मतलब सबसे ज्यादा scoreable DM रहता है compared to quants as well as the first one. But you should be not panicking yourself. You should be very calm and composer while solving it out. So we have practiced a lot of question, most of the thing, and most of the cases whatever they have discussed, right, all we have done. ठीक है? तो अगेन इफ यू स्कोर सिंगल डिजिट, फॉर एग्जांपल 7 to 8, भाई आपकी नैया आप ही पार लगा सकते हो, फिर आई डोंट नो हाउ यू गोना मेक इन टू एक्सिलरेट और समथिंग लाइक दैट, राइट? ठीक है? तो थोड़ा सा फोकस रखो चीजों पे, प्रैक्टिस मोर। एनीवेज लेट्स मूव अहेड। कौन से पे थे हम? ओके, एट द बोर्ड members came up with the following suggestion, which of the following suggestion would harm the company the least?
नाउ द क्वेश्चन इज अपोजिट, राइट? पहले ऊपर बोल रहा था एडवर्स इफेक्ट करेगा दोनों, राइट, एज वेल एज ब्रिलियंट एज वेल एज द कंपनी, राइट? नाउ इन दिस दे आर टेलिंग आउट, इट शुड हार्म द कंपनी द लीस्ट, राइट? ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला, terminate the service of Mr. Brilliant to maintain the company's clean image, suspend Mr. Brilliant for at least a year with immediate effect, form a committee of women employees in the company and make reports saying that Brilliant is not guilty, file an FIR against Mr. Brilliant, set up a fast track committee to investigate the present their finding within a month to enable board to take a decision following with harm the company the least. Option E, right? देखो, फास्ट ट्रैक अगर आप इन्वेस्टिगेशन रख रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली बात है व्हाट विल हैपन, दिस विल बैलेंस द नीड फॉर अ थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, राइट? है ना? प्लस it will be a, it will minimize the the what we can tell the company's image, right? अनसर्टेनिटी जो रहती है और जो डिसरप्शन रहता है उसको भी मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, और प्लस एक आपने टाइम फ्रेम इनको दे दिया कितना, 1 मंथ का, राइट? तो दैट विल अलाउ टू बी अ फोकस इन्वेस्टिगेशन, राइट? है ना? और कंपनी भी आपकी स्टेबिलिटी में रहेगी, कंपनी भी फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी विल बी ऑल्सो स्टेबल, राइट? ठीक है, अब ए एंड बी तो आप ऐसे हटा दोगे, राइट? Because A and B are hasty decision, right? That will be disastrous also, right? Why? Maybe Mr. Brilliant is innocent, right? We don't know about that. ठीक है, तो A and B is gone, right? Now we are left with C and D. वो भी आप ऐसे हटा दोगे, D तो आप ऐसे हटा दोगे because file FIR against Mr. Brilliant, right? और C में आप क्या बोल रहे हो? Form a committee of women employees, right? Don't you think this women employees, like जिसमें सिर्फ women employees present है, right? That will be biased for that woman. यहाँ बायसनेस आ जाएगी ना सी में, राइट? और ड्यू प्रोसेस भी लैक कर रहा है, तो विच वन इज बेटर? ई, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राइट? क्या हमें कंपनी की इमेज देखनी है, राइट? अगर आप बायसनेस पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग विद सी, तो अगेन यू आर गोइंग थ्रू बायसनेस नाउ फॉर द वुमेन, उसमें पर्टिकुलर उसने लिख दिया ना, फॉर्म अ कमिटी ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज, राइट? राइट, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, नाउ द बोर्ड मेंबर डिसाइड, the board member decided to suspend Mr. Blunt from a company for 6 months due to pending internal inquiry. Which of the following should Mr. Brilliant do in order to save his career at ABC Limited for the time being? Okay. अब इसमें ब्रिलियंट को अपने आप को वो करना है, राइट? ठीक है, ask his followers in the company to influence the members conducting the internal inquiry. Reveal the fact that he had notified the HR department that he was in a relationship with Mr. Leela 6 months ago. Threatened to join a rival company. Reveal all. Make a steering speech highlighting his role in the company's secrets to them. Make his followers in the company threaten to resign immediate effect if his suspension is not revoked. Secrets to them. Okay. इन सब में से तो बेटर ऑप्शन ये लग रहा है, बी वाला, राइट? एक तो पहला ये कॉन्क्रीट एविडेंस ब्रिलियंट को दिखा देगा, राइट? कि मतलब जो मिस्टर ब्रिलियंट ही डिड नॉट इंटेंडेड टू कीप द रिलेशनशिप अ सीक्रेट, राइट? That will, it will weaken Mr. Leela claims of harassment, right? Plus, what it will show, he was transparent, right? And he was on a cooperation part, right? That was, he was trying to build trust with, what do we say, the board, है ना? और third thing, prior notification जो आप HR को provide कर रहे हो, right? That will avoid acquisition, कि आप, you are trying to influence the fact, right? So which one is the better? B. सर Yes, बी sir. छोड़ बी छोड़ के सर बाकी सारे ऑप्शंस में अनएथिकल भी है। मतलब जो भी स्टेप्स मेंशन्ड है बाकी सारे ए सी डी और ई में, दोज आर ऑल अनएथिकल फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, इजंट इट सर? बी जा रहे हैं ना? हाँ बी जा रहा है। हाँ,
व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल कि मतलब क्या, मैं समझा नहीं। जैसे अनएथिकल तो है वो, मतलब तो इसलिए तो मैंने बोला, मैं तो बी को एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाई बी इज द बेस्ट आंसर, राइट। सर मतलब आई सॉल्व दिस बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस बिकॉज बी, क्योंकि और नहीं कुछ बाकी सारे ऑप्शंस भाई, क्योंकि मैं क्या करूँ, अनएथिकल एक थे, एक that's why मिनट एक B। मिनट एक मिनट, तो मैं क्या बोलूँ, मैं भी क्लास में ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है, कि ए सी डी इज अनएथिकल, लिव इट, बी इज द आंसर, ऐसा मैं कर दूं कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि व्हाई बी इज द आंसर? ये बता मुझे पहले। नहीं सर, मतलब आई वाज जस्ट रिवीलिंग माय थॉट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाट भाई आई एम सही बात है, इवन आई सॉल्व इट सेइंग। लाइक दैट ऑल्सो, भाई मैंने भी वही सॉल्व करके डायरेक्ट, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि बाकी सारे अनएथिकल हैं, राइट। बट आई हैड टू एक्सप्लेन इट आउट ना कि बी मैंने क्यों सेलेक्ट किया, राइट, व्हाई बी इज एथिकल, राइट, व्हाट द पॉइंट शुड कम इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, राइट, कि while राइट answering राइट। this out, because this might be another fact that you might be having in another question too, right? तो उसमें भी अगर ऐसा जहां आता है जहां पे you should be more transparent, you should be compatible to the HR, तो you can have this point in your head ना कि maybe in this point of time you had to go through this option, right? वो तो सारे हैं ही, वो तो राइट। सारे सारे के पॉइंट्स भी हैं कि भाई सारे अनएथिकल्स हैं, राइट, वो तो दिख भी रहा है साफ साफ कि आप अपने फॉलोअर्स को बोल रहे हो टू प्रोवाइड इट आउट, राइट, प्लस जो आप एचआर से कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपेरेंसी टू हर और वट एवर इट इज, राइट। ये तो आप अपना पॉइंट पुट कर रहे हो ना कि हाँ ठीक है भाई, मैंने पहले ही तो बता रखा था एचआर को सब चीजों के बारे में। मैं तो इसलिए एक्सप्लेन ये कर तो। रहा था कि कि व्हाई दिस इज एथिकल एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चूजिंग दिस आंसर, राइट। एलिमिनेशन से तो भाई तो ऐसे भी हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा था कि मैं तो पहले ही बोल दिया बी आंसर है, जैसे आई वाज पुटिंग माय पॉइंट कि व्हाई बी इज द अ प्रॉपर आंसर फॉर दिस, ठीक है। यस सर। ओके। दीपक, द हेड ऑफ लॉजिस्टिक, राइट। हाँ, अगेन सेकंड, वन एंड टू, दे वर वेरी डायरेक्ट, ठीक है, बहुत इजी थे। इसमें अगर आप गलती करा है आपने या फिर आपने ये दोनों मिस करा है, आई डोंट नो व्हाट टू से, राइट। इसमें गलती तो होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज द क्वेश्चंस वेर वेरी डायरेक्ट, राइट। एनीवेज, प्लस द 6 मार्क्स वाज आपकी मुट्ठी में था कि हाँ चलो कर लेते हैं ऐसा, वी कैन गेट इट, ठीक है। एनीवेज, लेट्स मूव अहेड। Deepak, the head of logistics of one of the country's largest steel companies, was deep in thought about a problem his department was facing. Globalization has had affected his industry like many other industries. Despite the increased competition, current revenues of his organization remained healthy as his company was able to deliver to new clients in overseas market as well as to remote areas thanks to improved infrastructure. However, the complexity of managing logistics had increased manifold. Logistic personnel, sorry, logistic personnel were under pressure to come up with solution that would be cost effective and at the same time deliver quickly to their large customers. Okay, the biggest challenge for Deepak was to handle increasing volume quickly. Most of his colleagues were middle aged and knew only about the traditional methods of transporting steel. Transporting additional volumes was a challenge as all the logistic people were busy as it was very difficult to get people with relevant experience. Anyways, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Large overseas clients as well as distributor in remote areas were complaining that their shipment were arriving late frequently. Deepak knew this was because most of his colleagues were still sending shipment by train to ports and remote areas as they had done for many decades. Deepak was pondering 5 possible solutions to tackle this problem. Okay, get the help of transport consultant to stay updated, recruit more personnel in the logistic department, decrease the number of simultaneously shipment handled by each logistic person, decrease time spent on client interaction, increase the time on generation solution, ask the logistic personnel to spend some time every day to explore the other more viable transportation method. Which of the following would be the best sequence by decision by Deepak starting from immediate to distant? Okay. First, you will go with third one, right? Decrease the number of simultaneous shipment handled by the each logistic person, है ना? यस सर। राइट, क्योंकि डायरेक्टली एड्रेस कर देगा इशू का जो कि पर्सनल ओवरलोड है, राइट, एंड इट विल फ्री अप द कैपेसिटी फॉर हैंडलिंग एडिशनल वॉल्यूम, राइट। तो 3-1 विल बी द फर्स्ट। 3 के बाद 4, यस सर। आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो सॉल्यूशन जनरेशन को, तो 3-4, हेलो, देन 5, 1 एंड 2 देखो ये लॉन्ग टर्म से थोड़े से लॉन्ग टर्म एक्शन है, राइट। आप कंसल्टेंट एक्सपर्टीज प्लस यू आर रिक्रूटिंग न्यू पर्सन, राइट, तो दैट विल कम आफ्टर 5। 3, 4, 5 दैट आर डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो न्यू ट्रांसपोर्ट, सॉरी ट्रांसपोर्ट मेथड, राइट,
So what you are doing, you are encouraging, personnel to research and experiment with road and water transport, right? So it would lead to faster as well as more efficient delivery options, है ना? जो हम वो रोड एंड वाटर जा रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, इट स्पेंड मोर टाइम, तो व्हाट इट वुड बी हैपनिंग विद दिस, ये क्या इसमें रिजल्ट करेगा, क्या रिजल्ट इट विल डू? यू माइट फाइंड मोर एफिशिएंट डिलीवरी ऑप्शन, राइट? बाकी जो फर्स्ट एंड टू है, राइट, दैट शुड कम एट लास्ट, है ना? 3 4 5, बिकॉज दैट आर वेरी लॉन्ग टर्म थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सीकिंग कंसल्टेंट एक्सपर्टीज, राइट? देखो सिम्पल सी बात है, एक बार इमीडिएट प्रेशर रिड्यूस हो जाए, राइट, तो दीपक ही कैन ब्रिंग द एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट? एक बार पहले आप इमीडिएट प्रेशर तो कम करो, राइट, तब ना आप कंसल्टेंट पे जाओगे. तो व्हाट डू बी द आंसर? 3 4 5 1 2, यस सर. क्योंकि टू को तो आप तभी रिक्रूट करोगे ना कि अगर फ्यूचर में नीड हुआ तब, राइट? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शन देन यू विल कम अप विद दिस थिंग ना. हेलो, राइट? और प्लस कंसल्टेंट के बाद मैंने क्यों बोला व्हाई आई एम कमिंग विद रिक्रूटिंग आफ्टर कंसल्टिंग, बिकॉज व्हाइल डूइंग द, जैसे जो कंसल्टेंट होते भी है, राइट, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली, तो दे विल टेल यू प्रॉपर पॉइंट ना कि व्हाट इज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ना आफ्टर डिस्कसिंग विद देम. So once you discuss with them, you have all the proper information about things, what is being done or what is being required, right? What has to be done. So you can go with this three, right? तो आंसर क्या होगा? 3 4 5 1 2, 4 5 1 2. राइट? कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन सी, C. राइट? ठीक है. Next, Deepak delves deep into each shipment made over the past 1 year and finds that the most shipment rail transport is the most cost effective, as it is cheaper than road transport and trains can carry large volume at one go. However, there are considerable time overruns and delivery because most good trains are slow in reaching their destinations due to internal operational deficiencies. Most of the time, goods trains are frequently shunted aside near railway station to make way for passenger train even when there are no passenger trains currently passing through. If the railways were a bit more alert, considerable saving in time would take place. How should Deepak attempt to solve this problem quickly? Again, what is telling? He has to solve the problem quickly, right? है ना? Yes sir. In order to save time of delivery. ठीक है, पहले चलते हैं. Write an official letter to the concerned authority of the railway highlighting the issue. Request his CEO to write a letter to the concerned authority of railway performance. Hire a retired senior person of the railway as consultant to ensure the train carrying shipment. Explore medium such as water do nothing. ई तो हटा दो आप, राइट? ई तो आपका चला गया, ठीक है. हेलो, Yes. Yes, sir. राइट? और ड्यू टू वी नीड फास्टर, राइट, ही नीड टू प्रॉब्लम क्विकली, राइट? तो ए एंड बी का ऑब्वियसली बात है, इट विल बी हैविंग नो डाउट मोर इन्फ्लुएंस, राइट? बट डोंट यू थिंक इट्स एन इनडायरेक्ट अप्रोच, राइट? और ये अगेन एक्सटर्नल प्रेशर पे रिलाई कर रहा है, B1, राइट? हेलो, और डी भी आपका चला गया. भाई वो क्या बोल रहा है? एक्सप्लोर द ट्रांसपोर्ट मीडियम सच एज वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट? नो डाउट इट्स अ गुड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, बट जो इमीडिएट ट्रेन डिलीवरी डिलेज है उसको तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा ना ये, Yes राइट? sir. नाउ वी आर लेफ्ट विद ए एंड सी. ए में प्रॉब्लम क्या है? रेलवे मतलब व्हाट इट इज, गवर्नमेंट. यू नो वेरी वेल इट इज वेरी स्लो, प्लस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है उसमें, राइट? जिसमें अनसर्टेन आउटकम्स आर आल्सो देयर, राइट? तो व्हिच वन इज बेटर? सी. Yes sir. C. पहला डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है इशू को, फास्टर इंप्लीमेंटेशन भी है, राइट? प्लस लेवरेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेवरेज कर रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी है इसका, सी में, राइट? हेलो, क्या? But sir, senior government retired employee, can he have any influence on the existing mechanisms of how the trains function? ऑब्वियसली ही विल हैव ना. क्योंकि सर जब आप वो तो उसको रिटायर्ड हो गया, कंसल्ट कर तो रहे उसका हो, कोई सुनने वाला है नहीं. क्यों नहीं सुनने वाला है? आप उससे कंसल्ट करके चीजें कर रहे हो ना.
बाकी ए से तो बेटर है वो, उसको तो पता है ना काम कैसे होता है, ही नोज वेरी वेल ना हाउ द थिंग्स हैज बीन डन. Okay. Okay. उसको You were saying इंटरनल that वर्किंग भी जो है ना internal. रेलवे सिस्टम की, ही विल गिव इनसाइट्स ना अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द रेलवे सिस्टम, राइट. तो वो आपके Okay. आइडेंटिफाई कर देंगे बॉटल नेक को, इनएफिशिएंसी जिसकी वजह से दिस थिंग इज हैपनिंग, एंड दे विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इजीली ना. Okay. Okay. प्लस उनमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी तो है कि हाउ रेलवे सिस्टम एंड इट ऑपरेशंस यू नो do the thing, right? You don't have to train them also, right? Mm. Either you have to make them do research, okay, fine, they already know the things, right? Okay. And even they can help him to, establish the communication very easily also. Affecting on the seniors is different thing, but they know the bottleneck, na, ki what exactly the problem it would be, right? So consulting is Based on that, you obviously a can give better some option. suggestions. Yeah. Okay. मतलब based on his experience, he can guide a better solution about how to navigate the supply chain. तभी तो बोल रहा है hire retired senior personnel from the railways as consultant. Consultant करते क्या है, यही तो करते हैं. What exactly they do? They just advise you how you can be working efficiently, right? So obviously the person who is being a part of this already, who has a knowledge about it already, right? So he knows the Mm-hmm. things very well now. And out of Right. all the options, Right. this one will be better one, because he has to solve Okay. the problem quickly, right? Yes, sir. Okay. Okay, I'm sending you new link, right? ये तो expire हो रहा है. New link भेजना, उसमें continue करते हैं यहाँ से. बाकी